हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 विज्ञान और अध्ययन जो हमारा समक्ष आया है जानवरों में प्रजनन। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके समक्ष जो यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने लाया है वो है एमसीक्यू क्वेश्चन। ही काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चन जो होते हैं आजकल के समय में देखा जाए तो एग्जामिनर एमसीक्यू को काफी महत्व देता है। इसलिए यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने आपके समक्ष जो है हर एक चैप्टर का एमसीक्यू लाया है और यहाँ पर उसको एनालाइज किया है, समझाया है और आपके समक्ष इसको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में प्रस्तुत किया है। तो आपको हर एक बात को ध्यान से समझना है, सोचना है और विचार करना है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है। Today we discussion most important chapter here, class 8 CBSE NCERT science here. The chapter here reproduction in animal. That's an important chapter. And here Tripan Study Center doing here a most important MCQ question here. That's important and important also for the competitive exam here. Let's see question here. On question on your screen, question is the most important here. Viperous organism are the ones which you know that is question is very important. The viperous organism are the ones of which that's important. The option here produce a eggs, B produce a young one, C both 1 and 2. And reason none of these. Question is very interesting here. But first of all, you check your knowledge and give a correct answer for this question. And also write the correct answer for your notebook. You know that you must have a thought of your answer and also write the question. Let's see. Check the correct answer for this question. Question is clear here. The viperous organism are the one which you know that produce egg. I have know that produce egg. Viverous organism does not produce egg. It means the A option is here wrong. Yani rejected is a produce eggs. A option is reject. It means to here C option also reject and D option also reject. There is only as a reminder is one option B. So here B produce a young one. That is the correct answer here. You know that the produce a young one option B is correct for this question. Viverous organism are the one which is the produce young one. B option is correct. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Cloning is made of cloning. Cloning is the most important here. There is the option sexual reproduction, B asexual reproduction, C both 1 and 2, and D is none of this. Question is very interesting. Cloning is a mode of. You know that that's an important question. But first of all, you check a knowledge and write the correct answer for your notebook. That's important here. You know that you must have a write the correct answer for your notebook. Let's see. Check the correct answer for this question. Question is clear here. A cloning is a mode of. You know that cloning is here a different method of reproduction here. It means the sexual reproduction is option is rejected here. Because there is a sexual reproduction, there is a not a important here. It means to A option is rejected. It means to the C options and D options also rejected here. It means to the option B is correct. The cloning is a mode of sexual reproduction. The cloning is a mode of asexual reproduction. It means to the B option is correct here. The B option is correct. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Animals exhibiting external fertilization. You know that animal exhibiting of external fertilization produce a large number of gametes. That's important question here. And pick the appreciate reason from this following. You know that that's important.
The animal of fertilization produce a large number of gametes. That's important here. Option A, the animals are small in a size and want to produce a more offspring here. And B, food is available in the plenty in water. And C, to ensure better chance of fertilization. And D, water promotes production of large number of gametes. You know that is a question is very interesting. But first of all, you check our knowledge and write the give answer for correct answer of this question here. You know that you must have a write the correct answer for your notebook. Let's see. Check the correct answer of this question. Question is clear here and very interesting also. Animal is visiting external fertilization, not a internal. Internal means there is under a body, but external they're outside of body. That's important. You know that external fertilization is a animals that take place here. External fertilization produce a large number of gametes. Pick the appropriate reason from the following. That's important. First options here, the animals are small in a size and want to produce more offspring. You know that the animals are small in size and want to produce more offspring. That is not a correct answer of this question. Next year, food is available is a plenty in water. No way. That's a nothing is a right as a statement of this question. It means to the B option here rejected. The C, to ensure better chance of fertilization. You know that that is sufficient answer to this question. It means to C option is correct. To ensure better chance of fertilization, option C is correct for this question. That's important. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Sets of reproductive terms are given below. Set of reproductive terms are given below. Choose the set that has an incorrect combination. You know that this is an important question here. Here examiner asks the question, there is a set has an incorrect combination, not a correct, incorrect combination. That's important for the exam point of view. You know that a first year sperm, testis, sperm duct and penis, and B is a maturations, egg, oviduct and uterus. C is a sperm, oviduct, egg, uterus, and D evolutions, egg, oviduct, uterus. That's an important question. But first of all, write the correct answer for your notebook firstly and check your knowledge. That is important. And I give you few seconds for here. You know that. Write the correct answer for notebook. Let's see. Check this question for the answer here. Question is very interesting. Sets of reproductive terms are given below. Choose the set that has an incorrect combination. You know that here option is 3 is a correct combination, but one combination is here wrong. I have only this incorrect combination is a find out. That's important. That's as the first option is sperm. There is a produced by testes, and testis there is a sperm duct and there is a penis. You know that is here series penis, sperm duct, testis is a producer sperm. It means to the here a right combination. That is the correct combination. Penis, there is a backside here penis. Penis is there is a sperm duct. There is a testis is a producer sperm, which means to the is a right answer. This is a correct statement here. And B here maturations. Maturation is a producer egg, and egg producer oviduct and the uterus. It means to the B option is also is correct here. There is a but examiner asks here incorrect combination. You know that 2 is a correct combination, but examiner asks here incorrect combination. That's important here. And third here is sperm, oviduct, egg, uterus. That is a different here. But let's see check a D option.
The ovulations egg oviduct uterus. That is a correct statement here. It means to the D options, A option, B option rejected here, but C is here very different. Is here sperm oviduct egg uterus. This is not a combination. It means to the here C option is correct. It means to the set that has an incorrect combination is a C. There is examiner ask you a question incorrect combination. C is a incorrect combination. It means to C option is right here. C option is right. Let's see next questions here. Next question on your screen. Question here, which of the following show the external fertilization? You know that first of all you understand what is external fertilization. External fertilization means there is a not in the body of fertilization, the outside the body fertilization. That's important. The option here: A frog, B human beings, C cow, D hen. That's important. That's important for the exam point of view. You know that first of all, you check a correct answer for this question and write the notebook a correct answer here. That's important. You must have write the correct answer for your notebook. Let's see. Check the correct answer of this question. Question is clear. Which of the following show the external fertilization? Hen hair is the fertilization under of the body. It means to the fertilization is the egg giving the fertilized egg. It means to the hen is not a here external fertilization. Cow is also is a both a young one. It means to the cow is not a is the fertilization is a external. It means the C options also is a rejected here. And B human beings. Human beings is also is a giving to the young one child. It means to here external fertilization nothing here. The human beings, cow, ham, there is a fertilization, internal fertilization. It means the option is A is correct here. A is correct. Frog here, external fertilization. The frog is giving to the eggs on the water, and the female has the fuse of and sperm. That's important. It means to the A option is correct here. A option is correct. There is a show the external fertilization in a frog. That's important. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here, which is not a biparous animal? You know that is a question is very interesting. Which is not a biparous animal? A human being, B cow, C dog, D butterfly. You know that a biparous animal, that's some very interesting here. But first of all, you give a correct answer for this question and also write the correct answer for your notebook. That's important. And you must have a thought of your answer. Let's see. Check the correct answer for this question. Question is clear here. Which is not a biparous animal? A human beings, they show the biparous here. It means to here A is a wrong statement here. C, there is a B, there is a B, C, there is a nothing is a biparous here. It means there is a biparous animal. Humans, cow, D is a biparous animal. It means to the A, B, C is rejected here. But D, butterfly, there is a biparous animal here. That's important. The option is D is correct for this question. Next question on your screen. Question here. The animal that produce a new young one is called. The animal that produce new young one is called A. Biparous animal, B. Oviparous animal, C. Both, D. None of these. Question is very interesting, but first of all, you check a correct answer of this question because you are important. You know that is most of a thought of your answer. Let's see. Check the correct answer of this question. Question is clear. The animals that produce a new young one are called. You know that you have already understand the biparous there is a both a new young one.
It means to the A option is correct. A option is correct for this question. That's important. A is a B plus is there is a most important options for the A. Let's see. Check the next question here. You know that next question on your screen. Question here. In humans, the development of fertilized egg take a place in the. You know that the human beings, their development of fertilized egg take place in here. A. Ovary, B. oviduct, C. testis, D. uterus. You know that C. testis. That's nothing here. The human development fertilized egg take place in there. That's important. You know that is a question is very interesting. But first of all, you check a correct answer for this question. I give you few seconds for you. You must have a thought of your answer. Let's see, check the correct answer of this question. Question is clear. In humans, the development of fertilized egg take place in. A option is ovary. You know that there is a ovary is not a take place here. It means A option is a false. B oviduct. B oviduct. There is also here a false. C testis. I already asked that test is nothing here. It means A, B, C is here. Not a correct answer for this question. It means D question is correct for this answer. That's important. Uterus. In humans, the development of fertilized egg take place in a uterus. It means the D option is correct. D option, uterus, is correct answer for this question. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Egg are formed in. Egg are formed in the A. testis, B. penis, C. ovary, D. none of these. That's important. The egg formation is the female. Female, that's important. There is a eggs are formed in. That's the question asked the examiner. You know that first of all you check a correct answer for this question and write the correct answer for your notebook. That's important. You know that you write the correct answer for the notebook. Let's see. Check the correct answer of this question. Question is clear. Egg are formed in the A. testis. There's not a testis the egg formation. Testis is the formation of a sperm. It means the A option is wrong here. B. penis. Penis here a root for the pass of out of the sperm. It means the B option is wrong. It means the B option is incorrect here. That is option C, ovary. You know that C, ovary. Yes, it is a correct answer. Egg are formed in there is a ovary. C is correct for this question. That's important. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. The how many modes of reproduction are there in the animal? You know that is a question is very interesting. How many modes of reproduction are there in the animal? A. 1 types, B. 2 types, C. 3 types, D. 4 types. Question is very interesting. But first of all, you check a correct answer for this question and write the correct answer for your notebook. You know that. Write the correct answer of the notebook. Let's see. Check the correct answer of this question. Question is clear. How many modes of reproduction are there in the animal? You know that animal reproduction here, sexual or sexual. 2 types here. It means the B option is correct. B option is correct for this question. Animal, there is a 2 types of reproduction on there here. That's important. Option B, 2 types. That's important. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. The cell formed
after the fertilization is called? The cell formed after the fertilization is called A. Embryo, B. Fetus, C. Zygote, D. Egg. You know that is a question is very interesting for the exam point of view. The question is interesting, but first of all, you give a correct answer and write the correct answer for your notebook. You know that you must have a thought of your answer. Let's see. Check the correct answer of this question. Question is clear. The cell formed after the fertilization is called. Know that A. embryos. No, embryos is a development children here. Embryo is a development here, and fetus is also is a advanced development. Embryo is a small stage, but fetus is a development stage. But zygote, that is the correct answer. Zygotes, it means the fertilization time. There is a second stage. It is a zygote. C option is correct for this question. The cell formed after fertilization is called zygote. Zygote is the most important answer for this question. C option is correct here. Next question on your screen. Question here. The fusion of sperm and ova usually occur in the fusion of sperm and ova usually occur in A. Ovary, B. Uterus, C. Testis, D. Oviduct. Question is most important and answer is important for the exam point of view and competitive exam also. You know that first of all, you give a correct answer of this question. Okay, and write the correct answer for your notebook. Question is very clear here. The fusion of sperm and ova usually occur in the A. Ovary. No way. The fusion of sperm and the ova usually occur. There are no things to the ovary. It means to the A option is incorrect here. B. Uterus. B. Uterus. This is not a correct answer of this question. And C. Testis. Testis is nothing is a correct answer because the fusion of sperm and ova usually occur in the node of testis. The C option is wrong. But D option is a oviduct. Oviduct is the correct answer of this question. The fusion of sperm and the ova usually occur in their oviduct. It means D option is correct for this answer. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. The male gametes or sperm consist of. Question is very interesting. The male gametes or sperm consist of A. 3 parts, B. 2 parts, C. 4 part, D. None of these. Question is very interesting here. Question is very interesting. The male gamete or sperm consist of. But first of all, you give a correct answer of this question. Question is very interesting and write the correct answer for your notebook. You must ever write the correct answer of your notebook. Let's see, check the correct answer of this question. Question is clear. The male gamete, you know that a male gametes and sperm, they consist here 3 part. A 3 part, that is the correct answer. The male gamete sperm consists of 3 part. It means the A option is correct. A option is correct, 3 part. That's important. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Ovum or egg are formed in. Ovum or eggs are formed in A. Ovary, B. Testy, C. Penis, D. Oviduen. You know that is a question is very interesting. But first of all, I give a clue. Testis and penis is not here a right answer. It means to the only two options remain here. Option A, ovary, and D, oviduen. That's important. But first of all, you write the correct answer for the notebook. That's important here.
I give you few seconds for you. You must have a thought and write also the answer for this question. Let's see, check the correct answer of this question. Question is clear. Worms or egg are formed in. Only here, two options remain. Ovary and ovident. I already is a B and C, testis and penis is rejected. It means to the here two option is here only. Ovary and ovident. You know that D option is here wrong. The evidence is nothing is the correct answer. It means to the only one option A is here remained. The ovary is the correct answer of this question. Ovum or egg are formed in a ovary. Ovary means female oviduct. That's important. There is a option is correct. Ovary. That's important. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. The budding occur in. The body occur A here. Amoeba. B is here. Dog. C is a paramecium. And D yeast. Question is very interesting. Budding occur in. That's important. But first of all, you write the correct answer for your notebook. That's important here. You know that is the questions is clear. You must have a thought and write the correct answer of your notebook. Let's see, check the correct answer of this question. Question is clear. Budding occur in. Budding occur in. First of all, B option is totally here wrong. B option is totally here rejected. There's a dog, there is a not a budding occur here. Amoeba, there is a not a correct answer. C paramecia, there's a not a correct answer. It means to A, B, C is here wrong option. It means to the only option is remaining D. D is correct answer east. East is a budding occur here. That's important. Budding occur in a east. D option is correct for this question. Let's see. Check the next question here. Next question on your screen. Question here. Binary fusion is absorbed in. The binary fusion is absorbed in A. Hydra, B. Yeast, C. Amoeba, D. Human being. You know that binary fusion is absorbed in. Question is very interesting. Question is very interesting. But one option is very odd. Human being. Human being is not a belong to binary fusion is absorbed here. It means D option is totally wrong. Rejected here. Only here reminded A, B, C. But is the answer is here very easy. But first of all, you give a correct answer for this question. I give you few seconds for you. You must have a thought of your answer. Let's see. Check the correct answer of this question. Question is clear here. Binary fusion is absorbed in. You know that A option is Hydra is not a binary fusion here. It means the A option is here wrong. East and nothing is here. East a budding, not a binary fusion. The east is a budding, not a binary fusion. It means to here B option is also is here incorrect. It means to the only option remaining C. C options here amoeba. Amoeba is a take place of binary fusion. Amoeba is a one part divided by the binary fusion a two part. It means to the here C option is correct for this question. C option is correct. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. The tadpole. The tadpole is the developing stage of which of these? Tadpole is the developing stage of which of these? A. Dogs, B. Cat, C. Frog, D. Human being. It means to humans. That's important option, but a tadpole is the most important here. But first of all, you give a correct answer and write the notebook a correct answer. That's important. And there is a you must have a thought of your answer. Let's see. Check the correct answer for this question. Question is clear here. Tadpole. Tadpole is a developing stage of which of these? The tadpole is developing not as a having a dog, cat, and human. That is a wrong option here.
That's mean to dog, cat, human is the wrong option. A, B, D is wrong. But there is the stage of frog, the tadpole. It means to the frog option is correct here. The tadpole is the developing stage which of the frog. C option is correct for this question. C, frog. That's important answer for this question here. Let's see. Check our next question. Next question on your screen. Question here, that's important. Question here, where does the fusion of male and female gametes generally take place? Question is very interesting. Where does the fusion of male-female gametes generally take place? A. Fallopian tube, B. Ovary, C. uterus, D. Zygote. You know that the question is interesting, but first of all, you give a correct answer for this question. Question is very interesting and write the correct answer for your notebook firstly. Okay? You must have a thought and write the answer for your notebook. Let's see. Check the correct answer of this question. Question is clear here. Where does the fusion of male-female gametes generally take place? You know that D option is here wrong. Zygote is nothing that female male gametes generally take place here. It means to D option is the wrong. C uterus is also is a wrong option here. B ovary not a good answer. It means to the A fallopian tube. A fallopian tube there is generally is take place. It means to the A option is correct. The fusion of male and female gametes generally take place in a fallopian tube. It means to the A option is correct here. Next question on your screen. Question here. Asexual reproduction is observed in. Question is clear. Asexual reproduction is observed in A. Cow, B. Buffalo, C. Sponge, and D. Hen. That's important here. But that's important. You must have a thought of your answer and write the correct answer for a notebook. Now that's important. I give you few seconds for you. You must have done the correct answer. Let's see. Check the correct answer of this question. Question is clear here. Asexual reproduction is observed in. Asexual reproduction. You know that cow, buffalo, there is the same types of animal. There is an animal category. Animal category is nothing sexual reproduction here, and the hen also. It means the only option is a C. Remind here, C option sponge is the C option is correct here. Asexual reproduction is observed in a sponge. C option is correct for this question. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. The male gametes is called. Question is clear. Male gametes is called. That's important. Option A, sperm. Option B, ova. Option C, embryo. Option D, zygote. You know that question is very interesting, but first of all, you check your knowledge and write the correct answer for your notebook. I give you few seconds for you. You must have done the correct answer for your notebook. Let's see. Check the correct answer of this question. Question is clear here. The male gamete is called D. Zygote. No way. It is not a correct answer. Zygote here. Zygote is totally wrong for this question. And C. Embryos. Embryos are nothing here. C option is also is rejected here. B. Ova is wrong. And the A. Yes. The male gamete is called to the sperm. It means to the A option is correct. That's important here. That's important. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Dash is the process that ensure continuity of life on earth. You know that is an important question here. Dash is the process that ensure continuity of life on the earth. A. Sperm, B. Reproduction, C. Embryos, D. Zygote. You know that the sperm is important, reproduction is also important, embryos is important, and the zygote is also important. But
one option is correct here. The important life on the earth, there is sperm, reproduction, embryo, zygote. That's important here. But first, there is important is the one, only one option is correct here. But first of all, you give a correct answer of this question. You know that you have to write the correct answer of the notebook. Let's see. Check the correct answer of this question. Question is clear. Dash is the process that ensure the continuity life on the earth. That's important. A sperm is important. But here according to the question, dash is the process that ensure the continuity of life on the earth. B. Reproduction. Yes, it is the correct answer. Reproduction is the most important, and reproduction is including sperm, embryo, zygote. But reproduction is the most important for this question's right answer here. B. Reproduction. Reproduction is the process that ensure continuity of the life on the earth. It means the B option is correct here. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. In Hydra, the mode of reproduction is. Hydra is important. There is a mode of reproduction here. A. Sexual reproduction. B. Sexual reproduction. C. Both A and B. And these are none of these. Option understand? Asexual is of A option here. B is here sexual reproduction. And C both A and B. And these are none of these. Question is interesting. But you write the correct answer for your notebook. That's important. And you have write the correct answer of the notebook. Let's see. Check the correct answer of this question. Question is clear here. In Hydra, the mode of reproduction is. That's important. The Hydra, the mode of reproduction is. Question is very interesting. The Hydra is not a take place here. Sexual reproduction. Sexual reproduction is nothing here. It means to the asexual reproduction is correct answer here. A option is correct for this question. Asexual reproduction. A option is correct. You know that is a question is important. Question here. Internal fertilization take place. Internal, external. Internal, the inside. External, outside. That's important. Internal is the inside. It means to here C, D option, the outside of female body, D outside the male body. It means to C, D is here rejected. Internal fertilization means inside of body, not the outside. It means to the C, D option is rejected here. Only here A and B is important. But first of all, you are important. You must have a thought of your answer and write the correct answer for your notebook firstly. Let's see. Check the correct answer of this question. Question here. Internal fertilization take place. I have already asked there outside the female and outside the male body. The CD option is totally is incorrect because internal fertilization is here inside of inside. The first option here inside a male body. You know that the male there is not a give a baby one. It means to the male is rejected here. Not a fertilization is a male body. It means to A option is incorrect here. There is it mean to the B option is correct here. B inside of female body. Yes, B option is correct here. Inside the female body. The female body is a fertilization take place here. It is called internal fertilization. The B option is correct for this question. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Which one of the following is not a part of female reproductive organ? Which one of the following is not a part of female reproductive organ? Question is clear here. Question asks here not a
part of female reproductive organ? A. Uterus, B. Ovary, C. Oviduct, D. Penis. Question is clear here. But you clear the correct answer for your notebook. That's important. You know that you must have a thought of your answer and also write the correct answer of your notebook. Let's see. Check the correct answer of this question. Question is very interesting and important also. They take place for here. NCERT text here. Which one of the following is not a part of female reproductive organ? A. Uterus. You know that uterus is an important part for the female body, female reproductive organ here. It means to A option is right, but examiner here asks not a part of female body. A. Uterus, the female part of body, and B. Ovary, also part of the female body, and C. Oviduct. Oviduct is also is a female part of reproductive organs here. It means penis. Penis is here a female organ, nothing here. It means to the options here D. Penis is correct. Examiner asks not a part of female reproductive organ. It means to penis. Penis is here male reproductive organ here. The penis is here male reproductive organ. It means to the here D option is correct. D options here correct. Let's see. Check the next question here. Next question on your screen. Question here. In the list of animal given below, hen is the odd one out. The hen is a odd in one out. The human being, cow, dog, hen. The reason for this is why the odd here hen. The reason give us. Question is clear. In the list of animal given below, human beings, cow, dog, hen. But hen is the odd one. The how is hen is the odd one in out. Give the reason. A. It undergoes to internal fertilization. B. It is a oviparous. C. It is a viparous. D. It is undergoes to external fertilization. You know that his question is very interesting. Question is very interesting. In the list of animal give below, hen is odd in one. Why? But first of all, you give a correct answer of this question because you are important. Okay? You know that. You write the correct answer of your notebook. Let's see. Check the correct answer for this question here. Question is clear. In the list of animal given below, human beings, cow, dog, hen. Hen is the odd in one out. The reason for here. Because it is a undergoes internal fertilization. No ways. The hen's internal fertilization is the right answer. There is a right, but not a odd here. It means to B. It is a oviparous. B. Oviparous? Yes, it is a correct answer here. It is a oviparous. Oviparous is mean here. There is a given to the egg. Their hen are giving egg. The human being, cow, dog, not a give a egg. Okay? It means to the hen is the odd one here. It means to the option is B is correct here. Option B, it is correct. There is C is a viparous. Viparous is given to the young one. It means human beings, cow, dogs are given a birth of young one. The C option is other, but B option is correct here. Oviparous, the B option is correct. The B, it is a correct for this question. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Dash is the process of fusion of gamete. Dash is the process of fusion of gamete. Option here. Oviparous, B. Viparous, C. Fertilization, and D. None of these. Question is most important here. Dash is the process of fusion of gamete. Question is interesting. But first of all, you give a correct answer and write the correct answer for your notebook firstly. That's important. Not give the correct answer. Okay?
and write the also a comment box. Correct answer, write the comment box. That's important. And then let's see, check the correct answer of this question. Question is clear here. Dash is the process of fusion of gamete. Dash is process of fusion of gamete. A. Oviparous. No way. Oviparous is not a option is correct here. B. Viviparous. Viviparous nothing's here. This is important, and you know none of this. No way. C is the fertilization is the correct answer. The fertilization is the process of fusion of gamete. C option is correct for this question. Fertilization. Fertilization is the process of fusion of gamete. C option is correct. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Dash are the cell involved in a sexual reproduction. You know that is the question is clear. Dash are the cell involved in a sexual reproduction. A. Factors. B. Gamete. C. Embryos. And D. None of these. Question is very interesting. But first of all, you give a correct answer of this question here. Question is clear. Dash are the cell in the sexual reproduction. You know that you are right the correct answer with the notebook. Let's see. Check the correct answer of this question. Question is clear. Dash are the cells involved in sexual reproduction. A factors. Factors is nothing here. Factor is a development stage. The factor is a development stage. And B. Gametes. You know that is gamete is correct answer of this question. Gamete is a correct answer for this question. Let's see next question here. The next question on your screen. Question here. The process of reproduction involving fusion of male and female gamete. You know that is an important question here. The process of reproduction involving fusion of male-female gamete is called dash reproduction. You know that is the question is very clear, but option here very different. A. Uterus. B. Ovary. C. Sexual. D. Penis. You know that three options is here wrong. One is correct, but one correct. That's important. But first of all, you give a correct answer of this question and write the correct answer for your notebook firstly. You know that you write the correct answer for your notebook. Let's see. Check the correct answer of this question. Question is clear. The process of reproduction involving fusion of male-female gamete is called dash reproduction. That's important. The fusion of male-female gamete is called dash reproduction. Uterus, there is an odd option. Uterus is an odd option. Ovaries is also is an odd option because ovaries here a part of reproduction, but not a female gamete is called a reproduction, dash reproduction. And C is here sexual. That is the correct answer because male and female gamete is called sexual reproduction. That's a clear sentence. The male-female gamete is called sexual reproduction. It means the C option is correct here. C option is correct, sexual reproduction. That's important. And let's see next question here. You know that next question on your screen. Question here. Factors is the factors is the A. Well-developed embryos. B. Developing embryo. C. A zygote. D. Male gamete. Question is very interesting here. The factors is the. But first of all, you are important. Write the correct answer for your notebook. I give you few seconds for you. You must have a thought of your answer and write. I give the correct answer. Okay. The question is clear here. Factors is the. Factors is the. That's factors not a developing embryos and not a zygote and not a male gamete. It means the option A is correct here. Well developed embryos. A option is correct for this question.
Factus is the well-developed embryo is A option is correct for this question. Let's see next question here. The next and last question on your screen. Question here. The female gamete is called. The female gamete is called A ova, B sperm, C zygote, D uterus. The important here. But first of all, you are important. Give the correct answer for this question and also write the correct answer for your notebook firstly. You know that you done the correct answer for your notebook and also comment the correct answer for comment box. Okay, let's see. Check the correct answer for this question. Question is clear. The female gamete is called. You know that the female gamete is called uterus. No way. It is not a correct answer. D is a wrong option. C zygote. No way. Zygote is nothing. The female gamete is called here. And a sperm is here male gamete. A sperm is here male gamete. It means the only option A is remained here. The A option ova. There is a right answer. The female gamete is called ova. A option is correct. That's important here for the competitive exam and also for the important for the exam point of view. That's important. यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है कक्षा 8वीं CBSE NCERT के अंतर्गत साइंस का। और हमारे समक्ष जो चैप्टर आया है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल, काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। देखा जाए तो इस चैप्टर में जो है हम मेल फीमेल्स और सारे जीव जंतु के जनन के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखा जाए तो है कक्षा 8वीं की जो है क्वेश्चन MCQ, लेकिन ये बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एक महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन साबित हो सकता है। तो ये जो MCQ है हर एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, सबके लिए महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो हमारे समक्ष यहाँ पर क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि विप्रेस जीव में कौन जीव आते हैं। सबसे पहले तो बात आपको ये समझना पड़ेगा कि विप्रेस जीव होते क्या हैं और इस किसको कह सकते हैं। यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है, क्या अंडे उत्पादन करने वाले जीव को कहते हैं विप्रेस, या बी युवा यानी एक नए बच्चे को जन्म देने वाले को हम विप्रेस कहते हैं, या सी ए और बी दोनों ही हो सकती हैं, या इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके पूरे चैप्टर में जो है विप्रेस वर्ड हर जगह आता ही रहता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बन जाता है। तो देखा जाए तो विप्रेस जीव वे जीव होते हैं जो क्या करते हैं। आप अपना आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो या अपना नोटबुक पे भी लिख के जो है रख सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आपको जो है पहले आंसर देना है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, आपने अपना आंसर जो है किसी भी माध्यम से मुझे भेज चुके होंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखा जाए अगर हम क्वेश्चन पे गौर करें तो यहाँ क्वेश्चन है विप्रेस जीव में वो जीव आते हैं। देखिए विप्रेस जीव होते कौन हैं। देखिए विप्रेस जीव होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, यानी बच्चा पैदा करने वाले जीव को हम विप्रेस जीव कहते हैं। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है यहाँ पर अंडा उत्पादन करने वाले की बात बताई गई है, ये सही नहीं है। यानी अंडे का उत्पादन नहीं करेगा जो है विप्रेस जीव, कभी भी अंडे का उत्पादन नहीं करती है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है। जब ए ऑप्शन गलत हो गया तो ऑटोमेटिक सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में ए का भी जिक्र की गई है, तो सी भी जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और इनमें से कोई तो होगा नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि विप्रेस जीव जो होते हैं वो जीव होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, युवा को पैदा करते हैं यानी बच्चे को जो है जन्म देते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ युवा वर्ड दी गई है, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकती है। आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि विप्रेस जीव जो होते हैं बच्चों को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, आप बी ऑप्शन के साथ जा सकती हो। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। क्लोनिंग एक विद्या है। क्लोनिंग तो आप जानती हो ना कि क्लोनिंग क्या होती है। क्लोनिंग ये होता है कि अपने जैसे जो है एक नए जीव की उत्पादन,
लेकिन इसका माध्यम थोड़ा सा डिफरेंट होती है, तो उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। देखा जाए तो कई क्लोनिंग हुए हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी वही है कि क्लोनिंग यानी क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग होती क्या है, क्या ये यौन उत्पादन है, या बी अलैंगिक उत्पादन है, या सी ए और बी दोनों है, या डी इनमें से कोई नहीं है। देखा जाए तो क्लोनिंग एक ऐसी विद्या है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्लोनिंग के अंतर्गत देखा जाए तो पहला जीव जो उत्पादन की गई थी वो शीप थी, यानी भेड़ को जो है उत्पादन किया गया था। और बहुत ही ये दिलचस्प जो है ये प्रोसीजर होती है। तो इसका आंसर आप सबसे पहले दे सकते हो, क्योंकि ये जो है ज़रूरी क्वेश्चन है। और आप अपना आंसर या तो कमेंट बॉक्स पे दे सकते हो या अपने नोटबुक पे भी नोट कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको सबसे पहले आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, मुझे नहीं करना है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। तो आपने आंसर जो है किसी भी माध्यम के तौर पे दे चुके होगे, मुझे विश्वास है। देखिए क्वेश्चन यहाँ क्लियर है कि क्लोनिंग एक कौन सी विद्या है। देखिए यौन उत्पादन का तो है नहीं, क्योंकि इसमें यौन संबंध नहीं होते हैं। अगर यौन संबंध होंगे तो बच्चे जो होंगे एक नेचुरल पैदा होगा। तो ये लेकिन यहाँ क्लोनिंग की बात की गई है। क्लोनिंग जो हो सकती है इसमें मदर भी जो है डोनेटेड हो सकते हैं, या फादर के भी गैमेट डोनेटेड हो सकते हैं, तो किसी के भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो है अलैंगिक उत्पादन है, यानी बच्चों का जो होता है अलैंगिक तौर पर उत्पादन करते हैं, वो क्लोनिंग कहलाता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है अलैंगिक जनन, इसमें लैंगिक नहीं होती है, अलैंगिक जो है जनन करवाई जाती है। तो ये बी क्लोनिंग काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, और अभी आज के आधुनिक युग में तो इसका महत्व ही बढ़ गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही है, अलैंगिक उत्पादन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, बाहरी निषेचन प्रदर्शित करने वाले शिशु बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न करते हैं, अब निकले में से उचित कारण चुने। क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है। बाहरी निषेचन, बाहरी निषेचन का मतलब होता है दोस्तों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नॉट ए इंटरनल, एक्सटर्नल। आपने देखा होगा कि मछली भी जो होती है बाहरी निषेचन करती है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है। आखिर ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब करते हैं तो इतने अधिक अमाउंट में अंडे क्यों देते हैं, क्या कारण है। ये जो है पशु होते हैं बड़ी संख्या में जो है युग्मक उत्पन्न करते हैं, तो कारण क्या है। यहाँ कारण आपके समक्ष जो है कुछ दिए गए हैं। जानवर आकार में छोटे होते हैं और अधिक संतान पैदा करना चाहते हैं। देखिए ये ऑप्शन पहला बनता है। दूसरा है पानी में भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सी बोलता है निषेचन के बेहतर संभावना सुनिश्चित करने के लिए, और डी कहता है पानी बड़ी संख्या में युग्मकों के उत्पादन को बढ़ावा देता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिलचस्प है, समझने वाली है। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि बाहरी निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होते हैं कई जीवों में होते हैं, और ये जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं तो बहुत ही अमाउंट में, लाखों करोड़ों अमाउंट में जो है अंडे देते हैं। आपने देखा भी होगा फ्रॉग भी जो है बाहर जो है अपनी फर्टिलाइजेशन करती है, मछली भी जो है अंडे दे देती है, तो जाके वहाँ पर जो है मेल जो होता है मछली जो होता है उसको फ्यूज़ कर देता है सारे अंडे को, तो सारे जो है बच्चों में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा करते क्यों है वो, इतने अधिक अमाउंट में बच्चे जन्म देने की क्या कंडीशन हो सकती है। तो ऑप्शन देखिए, आप अपना आंसर सोच सकते हो। मैंने क्वेश्चन को जो समझाने की कोशिश किया है, अगर आप समझ में आ चुका है तो आपको आंसर भी जो है क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स के साथ साथ अपने नोटबुक पे भी लिख सकते हो, बाद में अपना चेक कर सकते हो कि आपका आंसर कितना सही गया। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, अच्छी बात है। चलिए हम एनालाइज करके देखते हैं कि उसका आंसर क्या हो सकता है। बाहरी यानी एक्सटर्नल निषेचन जो है प्रदर्शन करने वाले शिशु बड़ी संख्या में जो है युग्मक यानी अंडे उत्पन्न करते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। देखिए जानवर आकार में छोटे होते हैं और अधिक संतान पैदा करना चाहते हैं। ये क्या मतलब हुआ कि जानवर अगर आकार में छोटा है तो अधिक संतान पैदा क्यों करना चाहेगा। ये तो एक ऑप्शन ही एक अजीब सा है। देखिए पानी में भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, क्या पानी में ही भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, क्या धरती पे नहीं है, क्या कहते लैंड पे नहीं है, क्या क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन दिया गया है। पानी में भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है
और डी ऑप्शन को चलिए देख लेते हैं एक बार कि पानी बड़ी संख्या में युग्मकों के उत्पादन में बढ़ावा देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? पानी भी तो आजकल प्रदूषित हो रखी है, तो ये कहाँ से बढ़ावा मिलेगा? सी कहता है कि निषेचन की बेहतर संभावना सुनिश्चित करने के लिए। हाँ, ये ऑप्शन देखा जाए तो काफ़ी दिलचस्प और सही भी है कि निषेचन को बेहतर संभावना सुनिश्चित करने के लिए। आपको मैं बता दूं कि ये सब जो होते हैं बाहरी निषेचन होते हैं, तो उसमें जो है संभावनाएं बहुत कम होते हैं बच्चों को बचने की, क्योंकि इतने अधिक अमाउंट में अगर बच्चों को जन्म नहीं देगा तो जनरल सी बात है, अगर इक्का दुक्का देगा तो उसके प्रेडेटर जो है खा जाएंगे। इसलिए जो है मछलियाँ हो, फ्रॉग हो, ये अधिक अमाउंट में जो है अंडे देते हैं और उसको जो है मेल जो है जाके उसको फ्यूज़ करते हैं, जो कि बहुत अधिक अमाउंट में जीव का जनन होता है। तो ये ऑप्शन सही है, सी, निषेचन का बेहतर संभावना सुनिश्चित करने के लिए जो है ऐसे जो है जीव करती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ये काफ़ी दिलचस्प था कि इस निषेचन को बेहतर संभावना सुनिश्चित करने के लिए कि वो सर्वाइव कर सके। ये नहीं कि एक दो बच्चों को जन्म दे और उनके बच्चे ख़त्म हो जाए और उनकी प्रजाति ही ख़त्म हो जाए। इसलिए जो ये जीव होते हैं निषेचन की बेहतर संभावना सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया था उनका सही आंसर है, और जिन्होंने ए बी डी लगाया है उन सब का गलत है। चलिए कोई बात नहीं, आगे और भी हमारे पास बहुत सी संभावनाएं हैं। चलिए देखते हैं अगला संभावना क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी मज़ेदार लग रहा है कि प्रजनन शर्तों के सेट नीचे दिए गए हैं। देखिए, एक प्रजनन की जो है आपको सेट दिए गए हैं, एक सीरीज दिए गए हैं। वह सेट चुने जिनमें गलत संयोजन है, यानी आपको यहाँ पर गलत जो है क्रम को चुनना है, सही क्रम को नहीं चुनना है। इसमें 3 जो है सही क्रम है और 1 जो है गलत क्रम है, तो आपको जो है यहाँ पर गलत क्रम को चुनना है। और ऑप्शन भी आप देख लीजिए क्या है। ऑप्शन है शुक्राणु भूषण शुक्राणु वाहिनी लिंग। दूसरा है बी मासिक धर्म अंडा डिम्बाहिनी गर्भाशय। सी है शुक्राणु डिम्बाहिनी अंडाणु गर्भाशय। और डी है ओवुलेशंस अंड डिम्बाहिनी गर्भाशय। तो ये ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन जिस बच्चे को समझ होगी वो आंसर आसानी से दे सकते हैं। जिनको समझ नहीं है वो थोड़ा सा उनको लिए मुश्किल पड़ेगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। कौन सा आपका जो है यहाँ पर मार्क्स लगने वाला है, तो आप अपना आंसर गलत हो सही हो जैसा हो अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए या मुझे कमेंट कीजिए, अच्छी बात रहेगा। ठीक है, आपने आंसर अपना सोच लिए होंगे। चलिए देखिए, यहाँ क्वेश्चन मैं एक बार और बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि प्रजनन शर्तों को सेट नीचे दिए गए हैं। ये जो क्रम दिए गए हैं आपको, वो प्रजनन का एक सेट है, लेकिन हमें गलत सेट को चुनना है। देखिए, शुक्राणु भूषण शुक्रवाहिनी लिंग। चलिए, ये सेट तो क्लियर कहता है कि शुक्राणु और विषाणु जो मिलेंगे तो शुक्रवाहिनी होगा और इससे लिंग का होगा, उत्पत्ति होगी। तो ये सेट तो सही है, लेकिन हमें गलत सेट को चुनना है। मासिक धर्म होगी तो अंडा उत्पन्न होगा, अंडवाहिनी में होगा, गर्भाशय बनेगी। तो जर्नल सी बात है, बी सेट भी सही है। अब देखिए, शुक्राणु हुआ, डिम्बाहिनी हुआ, अंडाणु हुआ, गर्भाशय। ये क्या, ये बीच में, चलिए शुक्राणु अंडाणु तो बात थोड़ा सा मानते हैं, लेकिन डिम्बवाहिनी कहाँ से आ गया? ये तो होना ही नहीं चाहिए था इस सेट में। तो इसका मतलब ये गलत सेट है, ये गलत सेट है। अब देखिए, हम डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन में है ओवुलेशन अंडा डिवाइनी गर्भाशय। चलिए, ये भी सेट सही है, इस सेट में कोई गलती नहीं है, सही है। इसका मतलब हुआ कि सी ऑप्शन जो है हमारे समक्ष गलत है, तो हमें गलत ही तो चुनना था। तो सी ऑप्शन आपका सही है। सबसे पहले दोस्तों ये बात महत्वपूर्ण रहता है कि आपको जो है क्वेश्चन को समझना जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चनों को समझते नहीं है, फटाक से ए बी सी डी किसी पे भी मार देते हैं। भाई यहाँ पर एक बात याद रखना कि ट्रिक कभी सटीक नहीं बैठता है। ज्ञान ही आपको जो है 20 मार्क्स दिलवा सकता है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्लियरिटी दिला सकती है। जो बच्चे सोचते हैं कि ट्रिक हर जगह ट्रिक की बातें की जाती है, ट्रिक दिखाते हैं कि यहाँ पर लीजिए 100 में से 100%। अरे भाई, कोई आपको 100% नहीं दिलवा सकता जब तक आप कोशिश खुद नहीं कीजिएगा। कहते हैं ऐसा अगर जादू होता ना, तो जो वीडियो बना के आपको मोबाइल पे लिखे होते हैं कि 100 में से 100% ले लीजिए, वो क्यों नहीं ले लेते 100 में से 100%? उनका तो देखिएगा एजुकेशन ही बहुत कम होता है। तो यही बात मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रिक कभी सटीक नहीं होता है, हमेशा अंडरस्टैंडिंग ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने क्वेश्चन समझा होगा,
पढ़ा होगा तो ज़रूर आप जो एग्ज़ाम में अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकते हो। और सारे इंटेलिजेंट बच्चे यही बात करते हैं और जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बाहरी निष्कासन दर्शाता है। देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के जो होता है निष्कासन होते हैं, फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो हमसे जो है बाहरी फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछ लिया है। इंटरनल यानी अंदर की बात नहीं बोला है, बाहरी यानी बाहरी कैसे होता है, एक्सटर्नल कैसे होती है। यहाँ पर हमारे समक्ष ऑप्शन आ गया मेढक, बी इंसान, सी गाय, डी मुर्गा। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन है। आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो और मुझे जो है अपने कॉपी पे भी लिख के दिखा सकते हो कि आपका आंसर कितने क्लियरिटी हुई। क्योंकि देखिए, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते और आपको करना अपने लिए है, मेरे लिए तो नहीं करना है। तो आप कीजिएगा तो अपना बेटर होगा। तो अपना आंसर जो है सही जो आपको लगता है अपने कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक है, आपने लिख लिया, अच्छी बात है। देखिए, क्वेश्चन समझ में आ गया कि निम्नलिखित में से कौन बाहरी निष्कासन कराता है। कौन जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, किस में, इंटरनल की बात नहीं कहा है, एक्सटर्नल बाहरी फर्टिलाइजेशन। अगर हम बाहरी की बात करें यानी शरीर से बाहर, तो इसका मतलब इंसान, गाय, मुर्गा सब रिजेक्ट हो गया। क्योंकि आपको पता है इंसान भी अपने जो है गर्भ से बच्चों को जन्म देता है, गाय भी अपने गर्भ से जन्म देता है, मुर्गी भी अंडे देती है तो अपने गर्भ से देती है। तो इसका मतलब बी, सी, डी सब रिजेक्ट हो गए। तो ऑप्शन तो एक ही रह गया, मेढक। देखिए, मेढक जो है जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मेढक जो होता है अपनी जीवों की क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत से अंडे जो होते हैं पानी में छोड़ देता है और मेल जाके सभी में गाय में डाल देता है, यानी स्पर्म डाल देता है, फ्यूज कर देता है। तो इसका जो हो गया फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, बाहरे हुआ ना, शरीर के अंदर तो नहीं हुआ, मेढक के अंदर तो नहीं हुआ, मेढकी के अंदर तो नहीं हुआ, मेढक ने बाहर किया ऐसा सारे कार्य। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो कि जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमेशा जो होते हैं मेढक में, मछलियों में, ऐसे कई जीवों में होते हैं, जिसके बारे में मैं जब चैप्टर करवाऊंगा तो वहाँ पर विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको जो है प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपके लिए उपलब्ध हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, कौन सा जीवित बच्चा जंतु नहीं है। देखिए, कौन सा जीवित बच्चा जंतु नहीं है। जो बच्चा जीवित तो है, बच्चा जन्म तो लिया है, लेकिन वो जंतु नहीं है। कौन सा जीव जो है इनमें से जो जंतु की कैटेगरी में नहीं आता है। क्वेश्चन तो बहुत क्लियर है, बहुत ही आसान है। देखिए, इंसान, गाय, कुत्ता, तितली। क्वेश्चन तो क्लियरिटी है ना। तो फटाक से अपना आंसर लिख लीजिए या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। आप लोगों ने अपना आंसर फटाक से लिख लिया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार है। कौन सा जीव बच्चा जंतु नहीं है, कौन सा है भाई। इंसान देखिए जंतु में आता है, गाय भी जो है जंतु में, यानी ये भी मेमल्स में ही आता है। हम इसको मेमल्स की कैटेगरी में रखते हैं। कुत्ता को भी हम मेमल्स कैटेगरी में रखते हैं। आप सोचिएगा कि हम क्यों इसको मेमल कैटेगरी में रखते हैं। हम इसलिए इसको मेमल कैटेगरी में रखते हैं कि सब जो है बच्चों को जन्म देते हैं, सब में बाल प्रेजेंट होते हैं, सभी अपने शिशु को जो है दूध पिलाते हैं। जो ऐसे कार्य करते हैं सब के सब जो है जंतु में ही आते हैं। आपको पता होगा कि एक्सेप्शनल केस जो होती है, वेल मछली जो भी होती है, वो भी जंतु में ही आती है। इवन कि आपने कभी सोचा होगा कि चमगादड़ जो है पक्षी है, उड़ रहा है, तो वो मेमल्स नहीं होगा, लेकिन नहीं, वो भी मेमल्स की कैटेगरी में ही आता है। क्योंकि वो भी बच्चों को दूध पिलाता है, वो भी बच्चों को जन्म देता है, उसके शरीर पर भी बाल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो उड़ता है, वो बात अलग है। तो समझ गए ना। तो इसका मतलब ऑप्शन तो आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपके समक्ष जो है डी ऑप्शन सही है, तितली। तितली जो है बच्चे को जो है ये जीवित बच्चा जंतु नहीं है, यानी ये जंतु कैटेगरी में नहीं आती है। डी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, वो जानवर जो नए बच्चे पैदा करते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए, वे जानवर जो नए बच्चे पैदा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑप्शन है। देखिए, ए जीवित बच्चा जनने वाले यानी विप्रस। ठीक है, यहाँ पर जो है वर्डिंग सिंपल होना चाहिए था, विप्रस होना चाहिए था, लेकिन अगर हिंदी में अगर कन्वर्ट करते हो तो जीवित बच्चा जनने वाले कहते हैं उसको हम। ठीक है, बी है अंड प्रजनक, ठीक है, विप्रस।
एंड सी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो बच्चे हिंदी में हैं उनको थोड़ा थोड़ा कठिनाई का सामना तो करना पड़ेगा, शब्दों का हेरफेर तो जरूर होगा। तो मैं तो आपको समझा चुका हूँ ना कि विप्रस कहते हैं, जीवित बच्चों को जन्म देने वाले जीवों को विप्रस कहते हैं। जो अंडे देते हैं अंडे प्रजनक कहलाते हैं। तो आप अपना आंसर चुन सकते हो कौन सा सही है। ठीक है, आपको जो है अपना आंसर नोटबुक पे लिख लीजिए, चाहे कमेंट कीजिए, बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है कि वो जानवर जो नए बच्चे पैदा करते हैं क्या कहलाते हैं। जनरल सी बात है, जो बच्चों को जन्म देते हैं वो अंड प्रजनक तो नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो अंडा देने वाले होते हैं। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही होगा, जीवित बच्चा जन्म वाले। जो जीवित बच्चे को जन्म देते हैं यानी विप्रस, उसी को कहते हैं। यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही गया। आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि मनुष्य में निषेचन अंडे का विकास होता है। देखिए, मनुष्य में निषेचन के दौरान अंडे का विकास कहाँ पर होता है। क्वेश्चन समझ में आया। मनुष्य में जब फर्टिलाइजेशन होती है तो अंडे का विकास कहाँ पर होता है। ठीक है, अंडे का विकास तो आपको पता है कि फीमेल में होता है। तो उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पर अंडे का विकास होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर। अब देखिए ऑप्शन भी देख लीजिए, उसे क्या अंडाशय कहते हैं, या बी डिम्बवाहिनी कहते हैं, सी भूषण कहते हैं, या डी गर्भाशय कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी दिलचस्प है कि मनुष्य में निषेचन अंडे का विकास कहाँ पर अधिक होता है। तो आप अपना आंसर जो है नोटबुक पे भी लिख सकते हो, चाहे आप जो है इसको कमेंट करके मुझे बता भी सकते हो, क्योंकि जो पहले करेगा वो काफ़ी इंटेलिजेंट होगा। तो चलिए, ये अच्छी बात है। कौन करता है पहले तो देख ही लेते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन मैं समझा दूं कि मनुष्य में निषेचन अंडे का विकास कहाँ होता है। अंडाशय में कहेंगे, जी नहीं, अंडाशय में नहीं होता है। विकास की बात कहा है, ना कि अंडे उत्पन्न करने की बात कहा है। अंडा निषेचन का जो निषेचन होती है अंडे के साथ, उसका विकास कहाँ पर होता है। मान लीजिए मेल फीमेल गैमेट मिल गया, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ी उसका विकास होता है, एक जगह होता है, उसको क्या कहते हैं। तो वही हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है, न कि ये पूछा है कि अंडा कहाँ से उत्पन्न होती है। यहाँ विकास की बात किया है। जब मेल फीमेल गैमेट मिल जाती है तो अंडे का विकास कहाँ होता है। अंडाशय में तो होती नहीं है, तो ए ऑप्शन तो है गलत है। डिम्बवाहिनी में भी नहीं होती है, ये तो क्लियर है। और भूषण तो आपको पता है कि पुरुषों में होता है, तो पुरुषों में कहाँ से होगा, ये तो ऑप्शन ही बिल्कुल ही ऑड है। अब डी देखिए, गर्भाशय, यू आर राइट, दैट इज द करेक्ट आंसर। गर्भाशय आपका सही आंसर है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका सही है कि मनुष्य में निषेचन अंडे का विकास जो होता है गर्भाशय में होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही गया। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है कि अंडे का निर्माण होता है। देखिए वही क्वेश्चन जो अभी कुछ देर पहले समझा रहा था, वही क्वेश्चन इधर से आ गया वहाँ से कि अंडे का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, अंडे का निर्माण कहाँ होता है। क्या ए भूषण में, बी लिंग में, सी अंडाशय में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। क्वेश्चन दिलचस्प है, जो बच्चे समझ गए होंगे वो फटाक से इसका आंसर दे सकते हैं, और आप भी दे सकते हो। आप पीछे मत रहो, क्योंकि कहते हैं ना यहाँ पर कोई तेज नहीं है, ना कोई यहाँ पर मूर्ख है, सब इंटेलिजेंट है। कहते हैं यहाँ तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस चल रहा है, मेन तो आपको एग्जाम में परफॉर्मेंस करके दिखाना है। यहाँ पर एक दो बार वीडियो देख लीजिए, ऑटोमेटिक सारे आपके दिमाग में यूं ही बैठ जाएगा। यहाँ पर ना तो ट्रिक मैं यूज़ कर रहा हूँ, ना आपको मैं जो है गलत रास्ता बता रहा हूँ। मैं तो सिंपल रास्ता बता रहा हूँ कि पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो समझेगा वही पेपर में समझा सकेगा। तो यही है, आप यहाँ पर समझ रहे हो, पेपर में आपको जो है एग्जामिनर को समझाना है कि आपके अंदर कितना दिमाग है। तो यही बात इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आपने आंसर अपना सोच लिया होगा, लिख भी दिया होगा, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन यहाँ साफ है कि अंडे का निर्माण कहाँ होता है। अंडे का निर्माण देखिए, यहाँ पर ए ऑप्शन है भूषण, यानी टेस्टिस। टेस्टिस में तो जो है आपको पता है कि यहाँ पर स्पर्म का निर्माण होता है, अंडे का निर्माण तो होता नहीं है। तो ए ऑप्शन तो गलत गया। लिंग की बात की गई है भाई, लिंग का मतलब होता है मेल फीमेल, तो इसका मतलब तो कोई अर्थ ही नहीं बना। तो यानी बी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत गया। सी अंडाशय, तो इसका मतलब अंडाशय सही है। तो अंडे का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में, यहीं पे तो फॉर्मेशन होती है। और आपको पता ही होगा
कि 28 दिन के बाद जो है वहाँ से अंडाशय से अंडे का रिलीज हो जाता है, ठीक है। और रिलीज होके जो है कुछ समय तक वेट करता है, उसके बाद जो है ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अंडे का निर्माण कहाँ होता है। सी ऑप्शन आपका सही है, अंडाशय। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आ गया है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि जंतुओं में प्रजनन की कितनी विधियां होती है। देखिए जंतु होते हैं, जंतु जो है कितने प्रकार से प्रजनन कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है कि जंतुओं में प्रजनन कितने विधि द्वारा हो सकते हैं। ऑप्शन है एक प्रकार से जंतु में जो होते हैं प्रजनन होते हैं, दूसरा है 2 प्रकार से, सी ऑप्शन है 3 प्रकार से, डी ऑप्शन है 4 प्रकार से। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम पॉइंट व्यू से भी महत्व रखता है कि जंतुओं में प्रजनन की कितनी विधियां होती है, ठीक है। तो आप अपना आंसर जो है सोच सकते हो, या मुझे राइट आंसर जो है अपने नोटबुक पे भी लिख सकते हो, या मुझे कमेंट भी कर सकते हो। जो पहले जो करेगा वो काफ़ी इंटेलिजेंट रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है कंपटीशन होना चाहिए आप सब में, कि जो आंसर जल्दी देगा उसके लिए अच्छा है। तो क्वेश्चन चलिए मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि जंतुओं में प्रजनन की कितनी विधियाँ होती है। देखिए जंतु में अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। एक कैसे हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है जंतुओं में। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा बी होगा सही। बी यानी 2 प्रकार से जो है आंसर सही है कि जंतुओं में प्रजनन की 2 विधि है, यानी 2 प्रकार की विधियां हैं। तो बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, बी ऑप्शन पे आप जो है टिक लगा सकते हो। एग्जाम में भी आपको यही करना है। तो बी ऑप्शन आपका सही है कि जंतु प्रजनन की जो है 2 विधियां होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे समक्ष आ गया है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है निषेचन के बाद बनने वाले कोशिका कहलाती है। देखिए जब निषेचन हो जाता है तो ऐसे कोशिका जो बनती है उसको हम कहते क्या है। क्वेश्चन समझ में आया कि निषेचन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं। क्या ए भूषण कहते हैं, बी भ्रूण कहते हैं, सी उगमंजस कहते हैं, या डी अंड कहते हैं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, और ऑप्शन भी काफ़ी दिलचस्प है। तो आपको जो है सबसे पहले इसका आंसर देने का सोचना होगा, विचार रखना होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको आंसर जो है देना महत्वपूर्ण रहता है। तो आपके माध्यम 2 है, या तो अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए या मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए। जो भी माध्यम आप चुनते हो वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा आपको कि निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका क्या कहलाती है। देखिए ए भूषण तो कहलाएगी नहीं, क्योंकि निषेचन के बाद भूषण तो कहलाना संभव नहीं है। बी भ्रूण, भ्रूण तो तब कहते हैं जब ये बन चुकी होती है, ठीक है। यानी देखा जाए तो अंड भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज होती है। तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन सही है, युग्मंजस कहते हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है युग्मंज, यानी सी ऑप्शन सही है। आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन आम तौर पर होता है, यानी शुक्राणु अंडाणु का जो है कहाँ पर मिलन होता है। क्वेश्चन समझ में आया सिंपल भाषा में कि शुक्राणु अंडाणु का मिलन यानी संलयन आम तौर पर कहाँ होता है। ए अंडाशय में होता है, बी गर्भाशय में होता है, सी भूषण में होता है, या डी डिंबवाहिनी में होता है। तो क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है, आपको आंसर देना है। तो आप अपना कोई भी माध्यम चुन सकते हो, या तो कमेंट करो या आप अपने नोटबुक पे नोट करो। बाद में आपने आंसर को चेक भी करना है कि आपने कितने आंसर का जो है सही जवाब दिया। चलिए ये बात काफ़ी दिलचस्प था, ये तो था आपके लिए। अब क्वेश्चन को हम एनालाइज करके देखें कि आखिर क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन तो साफ शब्दों में ये है कि शुक्राणु अंडाणु का संचलन आमतौर पर होता है। संलयन का मतलब आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो जर्नल शब्दों में देखा जाए तो शुक्राणु अंडाणु का मिलन कहाँ पर होता है, यानी शुक्राणु अंडाणु कहाँ पर मिलते हैं। देखिए अंडाशय में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि अंडाशय में अंडा जो है निकलती है, और गर्भाशय में बच्चों का जो है यहाँ पर विकास होता है। तो ए बी ऑप्शन तो यहाँ गलत है। और सी भूषण, भूषण जो होता है जहाँ पर स्पर्म रहता है बनता है। तो इसका मतलब ए बी सी सारे गलत हैं।
तो डी ऑप्शन सही होगा इसका मतलब। हाँ जी, डी ऑप्शन आपका सही है। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है समझिए उनका आंसर सही है, क्योंकि डी है जो डिम्बवाहिनी। डिम्बवाहिनी में जो होता है शुक्राणु अंडाणु का मिलन होता है, यानी संलयन होता है, आमतौर पर देखा गया है। ऐसे जो है आमतौर पर यहीं पर होता है, जनरली हर जगह। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है कि नर युग्मक शुक्राणु से मिलकर बनता है। जब नर युग्मक या शुक्राणु से मिलकर बनता है, किससे नर युग्मक या शुक्राणु बनता है, किससे, कितने भाग होते हैं उसको। आप देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं सिंपल शब्दों में बताऊं कि शुक्राणु जो होती है यानी स्पर्म होती है, उसके कितने भाग होते हैं सिंपल शब्द में। क्योंकि आप हिंदी माध्यम में हो तो हिंदी माध्यम के शब्द जो होते हैं बड़े कठिन होते हैं और बच्चे कठिन शब्दों में ही फंस जाते हैं। तो इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है हमेशा आपके लिए आसान से आसान शब्द लेके आता है जो कि आपके समझ में हो। बेशक देखिए हम एग्जामिनर के तौर पे लिखते हैं क्वेश्चन, लेकिन समझाते हैं आपको अपने लैंग्वेज में। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पर कोई भी बच्चा समझेगा क्वेश्चन कि नर युग्मक या शुक्राणु से मिलकर बनता है, तो क्या मिलके बनता है, क्वेश्चन तो आपको उलझ गए। लेकिन अगर साधारण शब्दों में मैं बताऊं तो यहाँ क्वेश्चन है कि शुक्राणु तो आपने देखा होगा, स्पर्म तो आपने देखा ही होगा, स्पर्म कितने भाग में बटे होते हैं, उसके कितने भाग होते हैं। हो गया आंसर क्लियर। तो आंसर जब क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो आंसर भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आंसर जो रूप में दिया गया है 3 भाग, बी कहता है 2 भाग, सी कहता है 4 भाग, और या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन आपको सही लगता है आप अपने नोटबुक पे या कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख सकते हो, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हो और आपको आंसर देना जरूरी है। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, दे भी दिया होगा, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि शुक्राणु से मिलकर बनता है। शुक्राणु जो होता है कितने पार्टों से बटे होते हैं, ठीक है। नर युग्मक ये शुक्राणु से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसको देखिए उलझाने वाली बात भी नहीं है। अगर आप ये सोचते होगे कि एक सिरा होती है और एक पूंछ होती है तो इसका 2 ही चीज़ होगी, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि इसके पूंछ जो होते हैं जब वो अंडाशय से मिलता है तो कट जाता है, तो उसके बाद बाकी पार्ट जाता है, लेकिन उस पार्ट में भी एक पार्ट होता है। तो इसका मतलब जो है ये 3 भागों में बटा हुआ होता है, यानी शुक्राणु जो होता है ये 3 भागों में मिलकर बना होता है, 3 भागों से मिलके बना होता है। तो ए ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन चुना है उनका आंसर यहाँ पर सही होगा, और जिन बच्चों ने जो है ए ऑप्शन नहीं चुना है उनका गलत है। लेकिन उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अभी बहुत से क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आप अपना जो है ट्राई कीजिए कि आप सही आंसर दे रहे हो कि नहीं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अंडाणु या अंडे का निर्माण होता है। क्वेश्चन समझ में आया कि अंडे का निर्माण कहाँ पर होता है। क्वेश्चन साफ शब्दों में बताऊं तो अंडे का निर्माण कहाँ पर होता है, ठीक है। ए अंडाशय, बी भूषण, सी लिंग, डी अंडकार। क्वेश्चन देखिए होता एक सही है, लेकिन इसके मिलते जुलते जो है 3 ऑप्शन होते हैं। तो 3 ऑप्शन तो गलत होते हैं, हमेशा एक ही सही होते हैं। तो आपको ये आंसर जो है सही वाला चुनना है और अपने जो है कॉपी पर लिखना है या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखना है। तो आप अपना जो भी माध्यम चुनते हो वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, ये काफ़ी दिलचस्प बात रहेगा। चलिए अब हम यहाँ एनालाइज करके देखें कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंडाणु या अंडे का निर्माण कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है अंडकार, लिंग, भूषण, तो ये सारी बातें तो यहाँ पर गलत सी नजर आ रही है। अंडकार तो होगा नहीं, लिंग का मतलब होता है पुरुष और स्त्री, भूषण का मतलब होता है स्पर्म जो कि मेल में बनता है, लेकिन अंडे का निर्माण तो फीमेल में होता है। तो जो भूषण के साथ तो यहाँ पर संबंध भी नहीं है। तो बी सी डी सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत साबित हो रहे हैं। सिर्फ देखा जाए तो ए ही ऑप्शन सही हो रहा है कि अंडे का निर्माण अंडाशय में होता है। देखिए अंडे का निर्माण जो होता है अंडाशय में होता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है कि डैश मुकुलन होता है। मुकुलन किस में होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर
कि डैश में मुकलन होता है, किस में होता है। यहाँ पर डैश जो है मिसिंग हो गई है, तो उसका टेंशन मत लेना। डैश में मुकलन, मुकलन होती क्या है, यही क्वेश्चन है आपके समक्ष। क्या ए अमीबा में होता है, या बी कुत्ता में होता है, या सी पैरामीशियम में होता है, या डी खमीर में होता है। तो क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि मुकलन किस में होता है। मुकलन का मतलब दोस्तों होता है कि काफ़ी डिवीज़न करते हैं अपने आप को ये। तो मुकलन काफ़ी महत्वपूर्ण एक प्रोसेसिंग है। तो आप अपना आंसर जो है सही चुन सकते हो। अब मुझे जो है कमेंट बॉक्स पे बता भी सकते हो, क्योंकि आप ज़रूरी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आप अपना आंसर सोच लिए होगे। चलिए देखते हैं कि एनालाइज करके कि मुकलन होता किस में है। देखिए अमीबा में तो नहीं होता, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है, यानी विखंडन होता है, खंडन होता है। कुत्ता में तो ऐसे देखने को मिलता ही नहीं। ये बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही ऑड यहाँ दिया गया है। पैरामीशियम में नहीं होती है, पैरामीशियम भी ऐसा नहीं करता है। ठीक है, खमीर करता है, यानी देखा जाए तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन खमीर, मुकलन जो होता है खमीर में होता है। तो आप डी ऑप्शन में जा सकते हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है डी ऑप्शन, जो ज़रूरी भी है। चलिए ये तो था आंसर काफ़ी महत्वपूर्ण। अगर आपने इसका आंसर सही दिया खमीर, तो आपके लिए बधाई हो। और जिन बच्चों ने अभी आंसर नहीं दिया है सही, उनके लिए आगे जो है और भी क्वेश्चन है, और भी संभावनाएं हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। देखिए क्वेश्चन है, द्विआधारी विखंडन देखा जाता है। द्विविखंडन किस में देखा जाता है। द्विआधारी विखंडन जो होती है, द्विविखंडन, वो किस में देखा जाता है। क्या वो हाइड्रा में देखा जाता है, या बी खमीर में देखा जाता है, या सी अमीबा में, या डी इंसान में। देखिए दोस्तों, इंसान का जो ऑप्शन यहाँ पर एग्जामिनर ने दिया है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप इसको डी तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दें, क्योंकि डी तो यहाँ हो ही नहीं सकता। हाँ, हाइड्रा, खमीर, अमीबा इस बात को जो है समर्थन कर सकता है, लेकिन इंसान तो समर्थन कर ही नहीं सकता। क्या आपका विखंडन हो सकता है शरीर का? नहीं ना। तो ये तो गलत ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप डी को जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर रिजेक्ट कर दीजिए, और डी को जो आप भूल ही जाइए। ठीक है, तो आपके समक्ष जो है यहाँ पर ए बी सी 3 ऑप्शन में द्वंद्व है। तो जो भी आंसर आपको सही लगता है आप अपना आंसर दे सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको 30% जो है कन्वर्ट कर दिया। तो आप अपना आंसर जो है चुन सकते हो, और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, चाहे आप इसको जो है मुझे कॉपी में भी लिख सकते हो। तो देखिए कैश जो भी माध्यम अपनाइए वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि इससे आपका ज्ञान का जो है परख हो जाएगी कि आप कितना जो पेपर की तैयारी में संलग्न हो। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, लिख भी लिया होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ क्लियर है कि द्विआधारी विखंडन देखा जाता है। देखिए हाइड्रा में तो नहीं देखा जाता है। हाइड्रा को तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती कि हाइड्रा में तो विखंडन ऐसी होती ही नहीं है, द्विविखंडन। खमीर में भी हमने पढ़ा था, खमीर में भी नहीं होता है। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तो खमीर में तो होता नहीं है। ये तो ऑप्शन चलिए गलत है। देखा जाए तो इंसान को तो हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं, तो इसका मतलब सी रह गया। तो सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। अमीबा में जो होता है द्विविखंडन होती है। अमीबा जो होता है एक पार्ट से 2 पार्टों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, आपने डायग्राम भी कई जगहों पर देखा होगा कि अमीबा जो है एक रहता है और एक से 2 में कन्वर्ट होता जाता है, और ये करके एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष जो है आ गया है। देखिए क्वेश्चन है, टेडपोल। टेडपोल इनमें से किसकी विकासशील अवस्था है। टेडपोल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एक अवस्था है जिसमें जो है एक जीव की विकास के बारे में दर्शाता है। तो वो जीव कौन सा है। क्या वो जीव कुत्ता है, क्या वो जीव बिल्ली है, या सी मेढक है, या डी मनुष्य है। देखिए टेडपोल आप सोचिएगा कि ये गर्भ की अवस्था होगी, तो हाँ हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किस में होती है, कुत्ते में होती है, बिल्ली में होती है, मेढक में होती है, मनुष्य में होती है। तो ये आपको आंसर सोचना है, और अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे लिखना है, और मुझे बताना है कि आपने कितने में से कितना आंसर जो है करेक्ट किया है। देखिए दोस्तों, अगर आप बताते हो चाहे नहीं बताते हो, ये आपकी जो है इच्छा पे निर्भर करता है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई में दिल से जो है लगे रहते हैं ना, वो हर तरह की एक्टिविटी करते हैं। वो दूसरे बच्चों से शेयर भी करते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे जवाब भी देते हैं। कुछ अच्छा लगता है तो भी बताते हैं, कुछ गलत लगता है वो भी बताते हैं। तो वो बच्चे जो होते हैं इंटरेस्टेड होते हैं, और वो बच्चे हमेशा आगे
बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जो बच्चे सिर्फ देख लेते हैं, लिख लेते हैं, समझिए उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको जबरन जो है करवाया जा रहा है, तो ऐसे बच्चे कभी कामयाब नहीं होते हैं। तो आप अपना आंसर जो है किसी भी माध्यम से कर लिए होंगे। अब देखिए टेडपोल जो है इनमें से किस विकासशील अवस्था है? कुत्ते में टेडपोल की अवस्था नहीं होती है, मैं क्लियर बता दूं, नहीं होती है। बिल्ली में भी नहीं होती है, और मनुष्य की तो बात ही मत कीजिए, मनुष्य में कहाँ से होगा? तो इसका मतलब मेढक के अगर आप लाइफ सर्कल देखोगे तो एक जो है फेस आपको टेडपोल के फेस दिखेंगे। तो इसका मतलब जो है सी ऑप्शन आपका सही है। आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, मेढक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए ये क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मों का संलयन सामान्य कहाँ पर होता है? यानी मादा और नर के जो होते हैं मिलन जो है अंडों का और स्पर्म का कहाँ पर होता है? क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है। नर और मादा युग्मकों का संलयन सामान्यतः कहाँ पर होता है? क्या ए फ्लोपियन ट्यूब में होता है, बी अंडाशय में होता है, सी गर्भाशय में होता है, या डी युग्मनज में होता है? क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है और आप अपना आंसर दे सकते हो, समझ सकते हो और मुझे बता सकते हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जितना आप आंसर देना दोगे उतना आपका जो है ऑप्शन एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस का बनेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस तब अच्छा बनता है जब आप हर क्वेश्चन के लिए अप्लीकेबल हो जाते हो। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा और मुझे बता भी दिया होगा, अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है, ठीक है, कि नर एवं मादा युग्मकों का संलयन सामान्यतः कहाँ पर होता है? तो जर्नल सी बात है दोस्तों, अंडाशय में तो अंडा का निर्माण होती है और गर्भाशय में तो बच्चे पलते हैं, युग्मनज तो में होती नहीं है। तो जर्नल सी बात है फ्लोपियन ट्यूब में ही रहेगी। तो ये फ्लोपियन ट्यूब में जो होता है नर और मादा युग्मक जो है आपस में मिलते हैं और यहीं से जो है फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेसिंग शुरू होता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर ऑप्शन सही है, फ्लोपियन ट्यूब। आप फ्लोपियन ट्यूब के साथ जा सकते हो, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन देखा जाता है, जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो कहाँ पर होता है? ए गाय में होता है, बी भैंस में होता है, या सी स्पंज में होता है, या डी मुर्गा में होता है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि अलैंगिक जनन प्रजनन कहाँ देखा जाता है? अलैंगिक का मतलब होता है जिसमें एक जो होता है अब्सेंट होता है, लेकिन फिर भी जो है जनन होती है। तो आपको जो है मैंने एक अच्छा सा क्लू दे दिया है, आप अपना आंसर जो है चुन सकते हो और अपना जो है नोटबुक पे भी लिख सकते हो और बाद में एनालाइज करके मुझे बता सकते हो कितना आपका आंसर सही गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन यह क्लियर है कि अलैंगिक प्रजनन कहाँ पर देखा जाता है? गाय में अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। जब गाय में नहीं होता है तो भैंस में भी नहीं होगा, और जब भैंस में नहीं होगा तो मुर्गी में भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर होना संभव नहीं है अलैंगिक जनन। तो इसका मतलब देखा जाए तो स्पंज यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। स्पंज, अलैंगिक प्रजनन देखा जाता है हमेशा स्पंज में, तो स्पंज यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप सी ऑप्शन के साथ जा सकती हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक कहाँ होता है? देखिए नर युग्मक जो होती है यानी स्पर्म कहाँ पर बनता है? क्या ए शुक्राणु में, बी ओवा में, सी भ्रूण में, या डी युग्मनज में? काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है, आपको आंसर अपना सोचना चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक कम आंसरों का जवाब दिया है उनको और भी बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको जो है एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है और अच्छे मार्क्स लेना है, और आगे कक्षा और भी जो है डिफ़िकल्ट है, तो उनको यहाँ से ही जो है मजबूती की वो पकड़ बनानी है जो आगे चल के उनको जो है और मजबूत बना सके। कहते हैं दोस्तों छोटे छोटे क्लासों से ही हम बड़े क्लास के जो है रास्ता तय करते हैं। जब तक आप छोटे क्लास में नहीं अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, आगे कक्षा आपके और भी जो है मुश्किलों का सामना खड़ा कर सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अपना आंसर जो है अपने नोटबुक के साथ साथ कमेंट बॉक्स पे भी देख सकते हो। तो आपने अपना जो भी माध्यम चुना है वो आपके लिए
महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। नर युग्मक कहाँ होता है? देखिए, युग्मनजस में भी नहीं होगा, भ्रूण में भी नहीं होगा, ओवा में तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ए शुक्राणु है। तो ए शुक्राणु इसका जो है ऑप्शन सही है। तो आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। शुक्राणु जो होता है नर युग्मक कहलाता है और इसे हम स्पर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं आगे का आंसर जो क्या है क्वेश्चन क्या है। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर जो है कम दिए हैं वो आगे के लिए ऑप्शन के लिए तैयार रहें और आगे का ऑप्शन और क्वेश्चन का आंसर जरूर दें क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है डैश वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतर सुनिश्चित करती है। आखिर वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण जो जीवन है पृथ्वी पर निरंतर बनी हुई है? क्या ए ऑप्शन शुक्राणु के कारण, या बी प्रजनन के कारण, या सी भ्रूण के कारण, या डी युग्मनज के कारण? क्वेश्चन तो आप समझ में आ गया होगा कि डैश वह प्रक्रिया है जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन जो है निरंतर सुनिश्चित करती है, जीवन कंटिन्यू चलती रहती है। क्या है ये कारण? तो आप अपना आंसर जो है यहाँ पर चुन सकते हो और अपना जवाब जो है अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अगर आपको नोटबुक पर नहीं है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकती हो। ठीक है, तो चलिए आपने जो भी माध्यम चुना होगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि डैश वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करती है। देखिए, शुक्राणु भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्राणु नहीं होगा तो अंडाणु में कैसे मिलेगा? ठीक है, और शुक्राणु नहीं रहेगा तो भ्रूण भी नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा युग्मनज भी नहीं होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है जब तक मेल फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे नहीं, एक नए जीव की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन सही जा रहा है। बी ऑप्शन जो यहाँ पर बता रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रजनन वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करती है। अगर प्रजनन न हो तो जीवन जो है सुनिश्चित नहीं होगा। आपको पता है जब ब्रह्मांड की रचना हुई, जब मनुष्य की रचना हुई, तो देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी तरह के प्रजनन यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन बाद में जब समझ में आई तो प्रजनन हुआ और जिसकी वजह से जो है संसार में जो है जीव को जो है उत्पत्ति हुई और जो है संसार में जीवों का जो है एक लंबी पीढ़ी बनती चली गई। तो ये तभी होती है जब प्रजनन होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर मैरिज करता है, अपने जो है वंश को बढ़ाता है तो प्रजनन करेगा, तभी जो है नया जीव की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। प्रजनन प्रजनन ही वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवों की निरंतर सुनिश्चित करती है। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे समक्ष आया है, देखिए क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है? जो हाइड्रा होती है ये एक तरह का जो है पौधे जैसा होता है, लेकिन वो हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी होती है? क्या ए अलैंगिक जनन होती है, बी यौन जनन होता है, या सी दोनों? ए और बी दोनों ही सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा किताब उनको पता होगा, और जिन बच्चों ने किताब नहीं पढ़ी है अगर वो प्लेलिस्ट में जाके अगर वीडियो देखें तो शायद उनको चैप्टर भी क्लियर हो जाए। लेकिन मुझे पता है कि बहुत से कम बच्चे जो होते हैं प्लेलिस्ट में जाते हैं और वहाँ से जो है वीडियो कलेक्ट करते हैं और देखते हैं और समझते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा कामयाबी कैसे मिलेगा आपको? आपके कामयाबी के लिए ही तिरपान स्टडी सेंटर ने प्लेलिस्ट का प्रावधान किया है। और आपको तो पता ही है कि अगर आप एक बार तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़िएगा तो ना जाने कितने सालों तक आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 से लेके MA तक के बच्चों के लिए वीडियो उपलब्ध है। और सारी वीडियो, ये नहीं कि इक्का दुक्का वीडियो उपलब्ध है, सारे सब्जेक्ट का, सारे सिलेबस का उपलब्ध है, वो भी आपके किताब के अंतर्गत, चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे वो टेक्स्ट बुक हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अपना आंसर जो है यहाँ पर सोच लिए होंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन ये क्लियर है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है? तो जर्नल से मैं बात बताऊं, हाइड्रा में जो है प्रजनन की विधि अलैंगिक विधि होती है, क्योंकि लैंगिक जनन से तो हाइड्रा नहीं करती है, हाइड्रा जो है अलैंगिक जनन करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हाइड्रा का अगर कोई भी पार्ट अगर आप काट दो तो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है और एक नया जीव का विकास हो जाता है।
तो हाइड्रा के कोई भी पार्ट काटोगे तो एक नया जीव बनता है, तो इसको हम अलैंगिक विधि कहते हैं। तो ये अलैंगिक विधि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अपना ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट है, ये आपका आंसर जो है सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कि आंतरिक निषेचन होता है। देखिए आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है यहाँ पर। आंतरिक निषेचन का मतलब होता है दोस्तों इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल का मतलब होता है शरीर के अंदर प्रजनन होता है, ठीक है। तो आंतरिक निषेचन होता है, कहाँ पर होता है, किसके पास होता है, क्या वो पुरुषों में होता है या महिलाओं में होता है। तो आंतरिक निषेचन जो होती है अंदर होती है कि बाहर होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सी डी ऑप्शन जो है बाहर लिखा हुआ है। महिला के शरीर के बाहर होता है, पुरुषों के शरीर के बाहर होता है। तो इसका मतलब सी डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही गलत है। तो आप दो ऑप्शन जो है यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हो और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ दो क्वेश्चन में ही द्वंद्व है। क्वेश्चन ए और बी में द्वंद्व हो रही है कि ए सही है कि बी सही है। लेकिन जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे वो फटाक से इसका आंसर जो है लिख लिए होंगे, ठीक है। तो आप भी जो है देर मत कीजिए, अपने जो है नोटबुक पे इसको क्वेश्चन का आंसर लिखिए। अब बाद में जरूर एनालाइज कीजिए कि आपने कितना आंसर जो है सही दिया। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि आंतरिक निषेचन होता है, कहाँ पर होता है, पुरुषों में होता है कि स्त्रियों में होता है। जो बच्चे बनते हैं, क्योंकि आंतरिक यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है, बाहरी के नहीं कर रहा है। तो पुरुष और स्त्री किस में होगा। अब जर्नल सी बात है, पुरुष तो बच्चों को जन्म देते नहीं है, तो स्त्री में ही होगी। और अंदर की बात है तो अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसमें ऑप्शन तो आपको क्लियर दिख गया होगा कि महिला के शरीर के अंदर जो है आंतरिक निषेचन होता है। बच्चे का निर्माण जो होता है महिला के शरीर में होता है और ये आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है उनका सही है और मुझे विश्वास है कि ये बी ऑप्शन बहुत से बच्चों ने लगाई है, क्योंकि ये पहले ही मैंने इसका जो है दो ऑप्शन हटा दिए थे। तो बहुत से बच्चों ने जो है इसका आंसर सही दिया है। चलिए अच्छी बात है, और भी आपको बेहतर करना चाहिए, तो इसके लिए अगला क्वेश्चन भी देखना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष यहाँ पर आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। पढ़िए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी रहता है कि यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपको यहाँ ऑप्शन पर टिक नहीं लगाता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहता है इस वीडियो का कि अगर आप इसको म्यूट करके देखते हो तो सारे वीडियो जो है म्यूट करके देख लीजिए, अपना ऑप्शन जो है पढ़ के लगा लीजिए और बाद में सुनिए कि भाई इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण बात रह गया ना। कई बच्चे तो ये होते हैं जब टेस्ट देते हैं तो वो क्या करते हैं, मोबाइल अपने पास रखते हैं और इसको म्यूट कर देते हैं और जो पे टिक लगा रहता है उसको सही मार देते हैं। लेकिन त्रिपाण सेंटर इस बात को ही हटा दिया है। तो ये आपके लिए किया गया है कि आप अच्छे से अच्छे कर सको, इसलिए यहाँ पर जो है मैं टिक नहीं लगाता हूँ। क्योंकि आप जहाँ भी अगर नकल करने का सोचिएगा तो इसको वॉल्यूम तो करिएगा ही, और वॉल्यूम करिएगा तो पकड़े जाइएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अपने क्वेश्चन जो है अपने नोटबुक पे भी लिख सकते हो, जो सही होगा उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन अंग का हिस्सा नहीं है। ए बोलता है गर्भाशय, बी बोलता है अंडाशय, सी बोलता है डिम्बाइनी और डी बोलता है लिंग। तो देखा जाए तो देखिए गर्भाशय जो है महिला प्रजनन अंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गर्भाशय, अंडाशय जहाँ पर अंडा का निर्माण होता है, तो ये भी महिला प्रजनन अंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और डिम्बाइनी जहाँ पर जो है स्पर्म का जो है मिलन होता है, स्पर्म और अंडे का मिलन होता है, उसको डिम्बाइनी कहते हैं। तो ए बी सी जो है महिला प्रजनन अंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन लिंग यहाँ पर जो है ऑप्शन ऑड है, तो हमसे ऑड ही ऑप्शन पूछ रखा है। देखिए अंग का हिस्सा नहीं है पूछ रखा है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपका आंसर जो है डी जो है, जो महिला का प्रजनन अंग के हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, देखिए क्वेश्चन है कि नीचे दी गई जानवरों की सूची में मुर्गी जो है बेजोड़ा है। बेजोड़ा का मतलब होता है दोस्तों ऑड है। आखिर
मुर्गी ऑड क्यों है, और देखते हैं क्या यहाँ पर हमें सूची दी गई है। सूची दी गई है इंसान, गाय, कुत्ता, मुर्गी। अब देखिए इसमें से मुर्गी को ऑड क्यों बताई गई, क्या कारण है इसका। ए, आंतरिक निषेचन से गुजरता है, यह एक अंडाकार है, या सी, यह जीवित बच्चा जनने वाली है, या डी, यह बाहरी निषेचन से गुजरती है। आखिर क्या कारण हो सकता है कि मुर्गी को जो है बेजोड़ा बताया गया है, यानी इनकी जोड़ा नहीं बन पा रही है, क्या कारण हो सकता है। तो देखा जाए, देखिए इंसान, गाय, कुत्ता, इनमें क्या समानता है। देखिए इंसान भी बच्चों को जन्म देता है, कुत्ता भी बच्चों को जन्म देता है, और गाय भी बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगा। इंसान में भी बाल प्रेजेंट होते हैं, गाय में भी जो है हेयर प्रेजेंट होते हैं, कुत्ता में भी हेयर प्रेजेंट होते हैं। इंसान भी बच्चों को दूध पिलाते हैं, गाय भी बच्चों को दूध पिलाते हैं, कुत्ता भी बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन मुर्गी ये तीनों में से कोई कार्य नहीं करती। तो आप अपना आंसर जो है सोचिए। मैंने आपको जो है बहुत अच्छा यहाँ पर पॉइंट बता दिया है, और अपना आंसर जो है नोटबुक पे नोट कीजिए या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आपने जो है जो भी माध्यम चुना होगा वो बेहतर होगा। तो आपने अपना माध्यम चुन लिया है। देखिए क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा ही चुका हूँ कि नीचे दी गई जानवरों की सूची में आखिर मुर्गी को जो है बेजोड़ा क्यों बताया गया है, यानी ऑड क्यों बताई गई है, क्या कारण है। तो मैंने अभी तक समझाया है कि गाय, इंसान, कुत्ता जो है एक कैटेगरी में आते हैं, ये सब मेम्मल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो मुर्गी आखिर क्या है, मुर्गी आखिर क्या है, एपीज तो नहीं है। एपीज यानी मुर्गी जो है एक अंडा देने वाली है, लेकिन इंसान, गाय, कुत्ता सब बच्चों को जन्म देती है। इसी में बीज हो रहा है ना, क्योंकि कारण तो यही बन रहा है कि इंसान, गाय, कुत्ता बच्चों को जन्म देता है, मुर्गी जो है सिर्फ अंडे देती है। इसका कारण क्या है, ये आंतरिक निषेचन से गुजरता है। देखिए आंतरिक निषेचन से तो तीनों ही गुजरते हैं। आंतरिक मतलब अंदरी, और बाहरी निषेचन तो किसमें है नहीं। तो ए, डी तो ऑलरेडी यहाँ पर रिजेक्टेड हो गया, और यह जीवित बच्चों को जनने वाली है। जीवित बच्चों को तो सिर्फ इंसान, गाय, कुत्ता ही जन्म देते हैं, मुर्गी तो देती नहीं है। तो देखा जाए तो ए, सी, डी ऑप्शन सारा के सारा जो है गलत है, सिर्फ ये बी ऑप्शन सही जा रहा है। ये अंडकार यानी ये अंडे देने वाली जीव है। ठीक है, इसीलिए इसको ऑड रखा गया है कि मुर्गी जो है अंडा देने वाले प्रजातियों में से आती है, इसलिए जो है इसको इस सूची से अलग रखा गया है, ऑड किया गया है। तो ऑप्शन समझ गए होंगे, ऑप्शन बी आपका सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है डैश युग्मकों का संलग्न की प्रक्रिया है, इनमें से डैश जो है युग्मकों को संलग्न की प्रक्रिया है, यानी एक नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन साफ है कि डैश एक नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। ये मैं आपको साधारण लैंग्वेज में बता रहा हूँ, और साइंटिफिक लैंग्वेज में देखिएगा तो डैश युग्मकों को संलग्न की प्रक्रिया है। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, आंसर तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है। तो आपने अपना क्वेश्चन समझ लिया होगा। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या है, क्या हमें ऑप्शन में दिया गया है। ए अनप्रजक है, बी विपोरक है, पोरस है, सी निषेचन है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन तो यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है, आप अपना आंसर सोच सकते हो, अपने नोटबुक में भी कर सकते हो, क्योंकि आपका आंसर सबसे महत्वपूर्ण है। आप जितने आंसर का जब आप सही दीजिएगा उतना जो है आगे बढ़ते चले जाइएगा। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, दे दिया होगा। देखिए डैश युग्मकों का संलग्न की प्रक्रिया है, अंडप्रजक नहीं है, विप्रोस नहीं है, विप्रोस नहीं है, तो इसका मतलब सी निषेचन। तो सी काफी महत्वपूर्ण बन गया, निषेचन। देखिए अब इसको फिल इन द ब्लैंक्स में निषेचन को रख के देखिए, निषेचन युग्मकों का संलग्न की प्रक्रिया है। देखिए शब्द भी पूरा बन रहा है। कभी कभी आपको ऐसा भी करके देखना पड़ेगा कि निषेचन युग्मकों का संलग्न की प्रक्रिया है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, सी आपका करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि डैश यौन प्रजनन में शामिल कोशिका है। देखिए डैश यौन प्रजनन में शामिल कोशिका है, कौन सा जो है यौन प्रजनन में जो है शामिल होता है। ए भ्रूण, बी युग्मक, सी निषेचन, डी इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अपना सबसे पहले आंसर देना पड़ेगा कि आप इसमें से कौन सा आंसर को जो सही मानते हो, लेकिन वो आंसर को मानना जो एग्जामिनर के पास है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बात बनता है। तो आपका आंसर जो है देने का माध्यम दो है, या तो आप अपने नोटबुक पे लिख सकते हो और बाद में एनालाइज करके बता सकते हो कि आपको कितना में से कितना आंसर सही गया, या आप मुझे कमेंट पे भी डाल सकते हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपके ज्ञान का परख है जो ज़रूरी है। तो आपने अपना कोई भी माध्यम चुन लिया होगा। चलिए हम इसका जो है एनालाइज करके देखें क्वेश्चन में कि आखिर क्या हो सकता है। डैश यौन प्रजनन में शामिल कोशिका है। देखिए भ्रूण जो है यौन प्रजनन में शामिल नहीं होता है। यौन संबंध प्रजनन में इसका अपना रोल होता है। लेकिन बी देखा जाए युग्मक, युग्मक मतलब होता है यौन प्रजनन, यानी आपस में प्रजनन करने को हम युग्मक कहते हैं। तो युग्मक जो है यौन प्रजनन में शामिल कोशिका है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, युग्मक, यानी युग्मक यौन प्रजनन में शामिल कोशिका है। तो बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आ गया है, देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि नर और मादा युग्मकों को संलेख से युक्त प्रजनन की प्रक्रिया को डैश प्रजनन कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि नर और मादा युग्मकों के संलेख से युक्त प्रजनन की प्रक्रिया को डैश प्रजनन कहलाता है। कौन सा प्रजनन हम कहते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं ये वर्ड काफी है। नर और मादा युग्मकों यानी नर और मादा संबंधों को जो कि प्रजनन में प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? क्वेश्चन देखिए और भी मैंने आसान बता दिया कि नर मादा युग्मकों को जो युक्त प्रजनन होती है उसको हम कौन सा संबंध बताते हैं? क्या उसे गर्भाशय संबंध बताते हैं, या अंडाशय बताते हैं, या यौन बताते हैं, लिंग बताते हैं, लिंग संबंध बताते हैं? तो आप अपना आंसर जो है यहाँ पर दे सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। जो बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है, ठीक है, जिसको अभी समझ नहीं आया दो चार बार देखे उनको सारी समझ में आ जाएगी, या प्ले लिस्ट पर इसका जो है पूरे चैप्टर का वीडियो भी देखे उनको भी समझ में आ जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास थे जर्मती होत सुजान, रस्सी आवत जात तो शिल्पे परत निशान, यानी जो बच्चे बार बार कोशिश करेंगे कामयाबी उनको एक दिन अवश्य मिलेगा। लेकिन जो कोशिश करेंगे उनके लिए, जो कोशिश नहीं करेंगे उनके लिए कोई भी जो है रास्ता खुला हुआ नहीं है। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, दे दिया होगा। क्वेश्चन यहाँ क्लियर है कि नर और मादा युग्मकों को संलग्न से युक्त प्रजनन की प्रक्रिया होती है, और इस प्रजनन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? देखिए गर्भाशय तो कहेंगे नहीं, ना तो अंडाशय कहेंगे। जनरल सी बात दोस्तों, हम ये कहते हैं यौन संबंध। आपने कहीं वर्ड सुना है यौन संबंध? यानी मेल फीमेल को जो मिलने की प्रक्रिया होती है उसको हम यौन संबंध कहते हैं। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही है, यौन प्रजनन कहा जाता है। यानी मेल फीमेल गैमेट्स के मिलने की प्रक्रिया को हम यौन कहते हैं, ठीक है। नर और मादा के जो मिलते हैं संलग्न होती है उसको हम यौन कहते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा है कि भ्रूण क्या है, भ्रूण किसे कहते हैं? ए अच्छी तरह से विकसित भ्रूण को कहते हैं, बी विकासशील भ्रूण को कहते हैं, या सी एक युग्मनजंस को कहते हैं, या डी नर युग्मक को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि भ्रूण किसे आप कहते हो, क्या होता है भ्रूण। तो आप अपना आंसर सोच सकते हो, अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, या अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हो। इतने सारे हमने क्वेश्चन किया, कमेंट भी आपने किया, अच्छी बात है, लेकिन नोट भी कीजिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। और बाद में एनालाइज कीजिएगा आपने कितना आंसर सही दिया, कितना गलत है। गलती हुई है दोबारा इसको एनालाइज कीजिए, दोबारा जो है इसको वीडियो को जो है आवाज़ को डाउन करके म्यूट करके जो है आप दोबारा से क्वेश्चन को देखिए और इसको जो है आंसर अपने कॉपी पे लिखिए। कहते हैं ना, कीजिएगा तभी कुछ होगा, ट्रिक कभी सटीक नहीं होगा, ठीक है। आप कोई बात समझ लीजिएगा तो इससे नहीं कुछ होना है, वो होने वाला है। जब तक आप पढ़िएगा नहीं, समझिएगा नहीं, एनालाइज नहीं कीजिएगा, आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो आप अपना आंसर चुन लीजिए। क्वेश्चन यहाँ क्लियर है, भ्रूण है। क्या है भ्रूण? देखिए यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शन जो है बिल्कुल ही बेकार है। नर युग्मक तो है नहीं,
एक युग्मनजस भी नहीं है। और देखा जाए भ्रूण, भ्रूण विकासशील भ्रूण जो बोला गया है, ये भी ऑप्शन यहाँ पर ऑड ही लग रहा है, क्योंकि विकासशील यहाँ पर भ्रूण जो होती है बिल्कुल विकसित होती है। भ्रूण तब कहते हैं हम, वो विकसित भ्रूण को कहते हैं। तो इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। ए ऑप्शन जो कहता है कि अच्छी तरह से विकसित भ्रूण को हम भ्रूण कहते हैं, बात सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो आपको समझ में भी आ गया। ठीक है, आपने भी आंसर सोचा, अच्छी बात है, क्योंकि जब तक दिमाग पे जोर नहीं दीजिएगा एग्जाम अच्छे से करेक्ट नहीं कर पाइएगा। तो कहते हैं जो दिमाग पे जोर देता है उसी को जो है आगे समझ आता है। तो चलिए देखते हैं, हम अपना अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर क्या है। हमारा यहाँ पर जो है अंतिम क्वेश्चन आया है, ये काफ़ी महत्वपूर्णता को साथ में भी लेके आया है। क्वेश्चन है कि मादा युग्मक क्या कहलाता है। मादा युग्मक समझते हो क्या होता है? यानी फीमेल युग्मक को हम क्या कहते हैं, औरतों के युग्मक को हम क्या कहते हैं? क्या ए ओवा कहते हैं, या बी शुक्राणु कहते हैं, या सी युग्मनजस कहते हैं, या डी गर्भाशय कहते हैं? लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन को तो मैं डायरेक्टली रिजेक्ट कर दूंगा। शुक्राणु को आप रिजेक्ट कर दिए, शुक्राणु तो नर में होता है, तो फीमेल की यहाँ तो बात ही नहीं रहेगा। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही गलत है, रिजेक्ट कर दीजिए इसको। तो आप द्वंद्व किस किस में रह गया? ए सी डी में रह गया। तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हो, कमेंट में भी लिख सकते हो, या अपने नोटबुक पे लिख के बाद में एनालाइज करके मुझे बता सकते हो कि आपने कितना आंसर सही दिया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं कोशिश करके हम भी। मादा युग्मक कहलाता है दोस्तों, मादा युग्मक जो क्या कहते हैं, गर्भाशय तो मादा में होती है, लेकिन हम मादा युग्मक को गर्भाशय नहीं कह सकते, युग्मनजस भी नहीं कह सकते। शुक्राणु तो मेल में होता है यानी नर में होता है। तो चलिए ए बी सी डी सारे ऑप्शन जो है रिजेक्ट हो गया, रह गया सिर्फ ए ओवा, यानी मादा युग्मक को हम कहते हैं ओवा। तो ए ऑप्शन आपका सही है, ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सब बच्चों ने काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर मेहनत किया, समझा। कहते हैं इस वीडियो भी देखना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन कहते हैं देख देख के भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और यहाँ पर तो आपके समक्ष अक्षर दिख रहा है, तो अक्षर जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, हम अगले वीडियो मिलेंगे। अब बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ।